Hi everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount. And this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that, you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. And in handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो हैंड नोट्स है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. सो परचेज दीज हैंड नोट्स सो दैट you can get good marks in your exams. In this video, we will discuss important question of IGNOU MBA. Even before this, I have made videos on important question, but then those were chapter-wise videos of important question because that time was new MBA and there were changes in the syllabus and study material. Then we made videos on the basis of 10 years. So now the exam has been conducted many times. So now we have again analyzed the complete syllabus and made a PDF, and in this PDF we have tried to keep a few questions as soon as possible because you people have demanding that we should start a series with less questions. So I have again brought important questions which are very important for your exams. So without wasting any time, let's get started. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर MMPC 020 का बिजनेस एथिक्स एंड CSR. इससे पहले मैंने MMPC 019 का अपलोड कर दिया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वीडियोस में चेकआउट कर लेना, और वहाँ पर भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो. आपको सारे कोर्स की वीडियोस मिल जाएगी. आज हम डिस्कस करते हैं MMPC 020 का बिजनेस एथिक्स एंड CSR. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टुडे वर्ल्ड एंड हाउ इज़ बिजनेस एथिक्स डिफरेंट फ्रॉम लॉ. डिस्कस. तो ये क्वेश्चन आपको करना है. देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एथिकल नेविगेशन व्हील, एक्सप्लेन द 6 एलिमेंट्स इन नेविगेशन व्हील. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको ज़रूर से करना है. देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ द स्टेक होल्डर्स हैव इमर्ज्ड एज स्ट्रॉन्ग ड्राइव्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये भी आपको करना है. देन उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्टिविज्म एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये भी आपको करना है. ये पूरी बुक आपकी CSR के ऊपर है. देन उसके बाद 21 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन ट्रेडिशनल इथिकल थ्योरीज एंड टेक्नोलॉजी इथिकल सिस्टम कॉन्सिक्वेंट एथिकल थ्योरीज. तो ये आपको करना है. देन उसके बाद 23rd है, एक्सप्लेन सोशल ऑडिट इन इंडिया एंड सोशल ऑडिट. 24th क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्जामाइन द कीज चैलेंजेस फेसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये आपको करना है. तो आपने इन PDF में ना 2 चीज़ें नोटिस की होगी कि एक तो इसमें हमने प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन नहीं रखे, दूसरा हमने इसमें आंसर नहीं लिखे हैं. प्रायोरिटी वाइज इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि सारे के सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटी वाइज रखने का कोई मतलब नहीं है. कुछ क्वेश्चंस में भी इस टाइम आएंगे, कुछ क्वेश्चंस में भी MBA के नेक्स्ट टाइम आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे हैं, आपको करने हैं. और जो एग्ज़ाम है वो हमने नहीं बनाया, तो इसीलिए हमने इनको प्रायोरिटी वाइज नहीं रखा है.
और सेकेंडली इनमें हमने आंसर नहीं लिखे हैं। आंसर इसमें हमने इसीलिए नहीं रखे क्योंकि आंसर आपको खुद से करने हैं। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो या फिर जो इग्नू की बुक है वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप खुद से करते हो, खुद से एफर्ट्स लगाते हो तो 90% प्रिपरेशन आपका वहीं से हो जाएगा। और अगर आपके पास कम टाइम है तो उसके लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेज़ कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स के हमारे पास ओनली यही कोड्स अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को इन कोड से रिलेटेड कोई हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हमें डीएम करके ये हैंड रिटन नोट्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है जिसको अभी आप देख रहे हो, इनको बाय कर सकते हो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस से। और अगर आप इन दोनों को फॉलो करते हो अच्छे से, हैंड रिटन नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ को, तो आप एग्ज़ाम तो पास करोगे करोगे, आपके ग्रेड कार्ड में अच्छे से ग्रेड भी आएंगे। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी पीडीएफ या फिर आपको कोई भी वीडियोस मिलने में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.